لیکن جب اللہ نے آرڈر دے دیا تو پھر کس کو خوش کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں یہ کام؟ بھائی اللہ خوش ہو رہا ہے تو بس اب ہم بھی خوش ہوں۔ دیکھو اس کی مثال ہے حدیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے بڑے بڑے سرداروں کو بیٹھ کر تبلیغ فرما رہے تھے، عرب کے بڑے بڑے سرداروں میں تبلیغ کا کام کر رہے تھے، اور وہ ایسے سردار تھے جو پکڑائی میں آتے نہیں تھے، بڑی مشکل سے بیٹھتے تھے، اور وہ اگر مسلمان ہو جاتے تو انقلاب آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ غریب اور نابینا صحابی، غریب بھی ہیں اور نابینا بھی، وہ بھاگتے ہوئے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں داخل ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، آپ کے چہرے انور سرخ ہو گیا غصے سے، اس لیے کہ بھئی یہ تو اپنے ہیں، کسی اور وقت پوچھ سکتے تھے، میں تو ابھی ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابی کا یہ عمل ناگوار گزرا، اور آپ نے غضبناک ہو کر نفرت سے اپنے چہرے کو ان صحابی کی طرف سے پھیر لیا دوسری طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ایسے نہیں ہوتا تھا جیسے ہمارا ہوتا ہے، گالیاں دینا شروع کر دیں، گریبان پکڑنا شروع کر دیں، ابے تو آیا کیوں یہاں پہ، ابے یہ نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ آپ کے چہرے سے جھلکتا تھا، اور بہت زیادہ جب نفرت کا اظہار فرماتے تو اپنے چہرے کو پھیر لیتے، بہت زیادہ جب نفرت کا اظہار فرماتے تو کیا کرتے؟ چہرہ پھیر لیتے ایسے کر کے بس۔ تو ان صحابی کو بڑی تکلیف ہوئی، اس پہ اللہ نے آیات نازل کی، عبسا وتولا ان جاءہ الاعمی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ سلوٹیں آ گئیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو پھیر لیا اس بیس پر کہ ایک نابینا آیا ہے۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا علم کہ آپ اس کو سمجھاتے تو وہ نصیحت حاصل کر لیتا۔ اما من استغنا، وہ لوگ قوم کے سردار جن کو آپ سمجھا کے تھک گئے ہیں اور ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں، اما من استغنا فانت لہ تصدی، ان کی ہدایت کے آپ پیاسے ہیں جو سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ واما من جاءک یسعی، اور جو دوڑتا ہوا طلب لے کر آ رہا ہے، وہو یخشی، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فانت عنہ تلہی، آپ اس کے معاملے کو سنجیدہ نہیں لے رہے۔ کتنی بڑی ڈانٹ ہے یہ، کتنی بڑی ڈانٹ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ لیکن حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اب دیکھو ہمارا معاملہ اگر ہوتا، ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے، بڑے بڑے آفیسر ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے، ایک غریب مسکین آتا ہمارے پاس، غریب مسکین آتا، ہم اس سے نفرت کا اظہار کرتے، یار میں ایسی اہم میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہوں، تمہیں ابھی آنا تھا، اور ہم اس سے نفرت سے منہ پھیر لیتے، اور ہمارے ابا کی طرف سے یا باس کی طرف سے ہمیں ڈانٹ پڑ جاتی، ڈانٹ پڑتی ٹھیک ٹھاک طریقے سے، تو ہمیں آئندہ کے لیے اس غریب سے ہمیشہ کے لیے نفرت ہو جاتی کہ اس کی وجہ سے ہوا یہ سب کچھ۔ کیا خیال ہے؟ ملتے اس سے کہ بھئی آئندہ اس کا خیال کرنا ہے کیونکہ باس نے کہا ہے، باس کا آدمی ہے، باس کا بھتیجا ہے، باس کا ماموں ہے، آئندہ اس سے ذرا اچھی طریقے سے ملنا ہے۔ دل تو نہیں چاہ رہا لیکن آرڈر کہاں سے آیا ہے؟ اوپر سے آیا ہے، مل لو اب۔ لیکن دل میں کیا ہوتی؟ نفرت، کہ ابھی ایک تو آیا غلط ٹائم پہ، اوپر سے اس کی وجہ سے مجھے اوپر سے ڈانٹ پڑی ہے، تو آئندہ اس سے تمیز سے ملتے، بولنے میں کیا جا رہا ہے بھائی، آئندہ ملتے بولتے یہ ہے جس نے مجھے سب کے سامنے کیا کروائی، ڈانٹ پڑوائی، کہتے نا۔ یہ اس لیے کہتے کہ ہمیں باس سے محبت نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، ہم تو آرڈر پہ چل رہے ہیں نا، اس کے احکامات پہ چل رہے ہیں۔ بھائی باس نے بولا ہے کہ میرے ماموں آ رہے ہیں، اپنی میٹنگ چھوڑ کر وہ غریب ماموں سے ملو، وہ ابھی کھیتوں کی کٹائی کر کے، صحیح ہے نا، کٹائی کر کے آ رہے ہیں، ان سے مل لو۔ اب آپ پہ شاق تو گزرے گا کہ اتنی اہم میٹنگ تھی مگر باس کا آرڈر ہے، مل لیتے ہیں۔ باس نے ڈانٹ بھی لگائی آپ کو کہ کیوں نہیں ملے اس سے، تو آئندہ ملو گے تو اس سے، لیکن دل میں صلواتیں بھی سناؤ گے، ملو گے اس لیے کہ باس کا آرڈر ہے، باس کا خوف ہے، اور صلواتیں اس لیے سناؤ گے کہ اس نے آپ کو ڈانٹ پڑوائی تھی، کیونکہ آپ کو باس سے محبت تھوڑی ہے۔ تو آپ باس سے کس کو محبت ہوتی ہے بھائی، اور ہونی بھی نہیں چاہیے، ہونی چاہیے تھوڑی تھوڑی، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ آپ کام کر کے دے رہے ہیں، اور وہ جو بونس دے رہا ہے نا عید کا، وہ زکاتیں نکال رہا ہے اپنی، وہ جو بونس دے رہا ہے نا وہ بھی کیا کر رہا ہے، بھی زکاتیں نکال رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، بہت سے اچھے بھی ہوتے ہیں، امپلائز پہ خرچ بھی کرتے ہیں، ان کو سخاوت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، تو ان سے محبت کرو، اور جو کھینچ کے رکھ رہا ہے نا آپ کو، کھینچ کے رکھو اس کو، استغنا کے ساتھ رہنا سیکھو، استغنا کے ساتھ۔ یہ مکھن اور چاپلوسیاں اللہ کو پسند نہیں ہیں، اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ بولو بھائی ہم یہاں کام کرتے ہیں، تنخواہ لیں گے،
निकलो बदली गली से। अगर वो अच्छा सलूक कर रहा है तो ठीक है, फिर आप भी ग्रेवियां लगाओ, ओवर टाइम के बजाय ग्रेवियां लगाओ। ओवर टाइम में और ग्रेवी में फर्क ये होता है कि ओवर टाइम के इजाफी चार्जेस होते हैं, ग्रेवी के पैसे नहीं लिए जाते, वो आप वैसे ही कंपनी की तरक्की के लिए आप अपनी तरफ से करते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कितनी सख्त तंबीह फरमाई अबसा व तवल्ला में, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े के बाद जब भी अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह अन्हु को देखते थे, आप मोहब्बत का इजहार फरमाते, उनका इस्तकबाल करते, फरमाते हादल्लज़ी आतबनी फीही रब्बी, ये वो बुजुर्ग शख्सियत है जिसकी वजह से मेरे रब ने मुझे तंबीह की है। इसका ऐसा मकाम है अल्लाह की नजर में, इतना बड़ा मकाम है कि अल्लाह ने अपने पैगंबर को तंबीह की है इसकी वजह से, ऐसा उसको प्रोटोकॉल देते, इतनी उसको इज्जत देते। ये इसकी अलामत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अल्लाह से मोहब्बत, तो आप ये देख रहे हैं कि अल्लाह को जिससे मोहब्बत है मुझे उसको मोहब्बत देनी पड़ेगी। ऊपर ऊपर से इज्जत देना काफी, बोलो ना भाई, नहीं है। तो मोहब्बत पैदा हो जाए ना अल्लाह की, बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। फिर जब ये कहा जाता है ना बूढ़े बाप का एहतराम करो, बूढ़ी माँ का एहतराम करो, और आप कह रहे हैं मैं 18वें ग्रेड का, मैं 20वें ग्रेड का, मुझे इंग्लिश आती है, मेरे अब्बा को तो उर्दू भी नहीं आती सही तरीके से, क्योंकि जब पढ़ लिख लेते हैं ना ज्यादा। अकबर इलाहाबादी ने कहा था ना, हम ऐसी सब किताबें काबिले जब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़कर के बच्चे बाप को खबती समझते हैं। जब अंग्रेज नया नया आया ना तो बच्चों ने इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दी, अब्बा को आती नहीं थी, तो बच्चे कहते थे अब्बा हमारे क्या हैं, जाहिल हैं, इनको तो आता ही कुछ नहीं। तो अब्बा को खबती यानी पागल समझना शुरू कर दिया। मदरसों में पढ़ते थे तो अब्बा का और एहतराम सीख के आते थे। जब अंग्रेज ने यूनिवर्सिटियां कॉलेजेस बनाई तो इल्म तो आया मगर तमीज और अदब खत्म, क्योंकि उनके यहां नहीं है तो हमारे यहां कहां से आएगी ये चीज, उनके यहां नहीं है, तमीज भी गया और अदब भी। तो भाई अल्लाह ने आपको जिसके एहतराम का हुक्म दे दिया, अगर आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी तो आप दिल से उससे मोहब्बत करोगे, बूढ़े वालिदैन को बोझ नहीं समझोगे, आप बूढ़े वालिदैन को बोझ नहीं समझेंगे, बोलेंगे भाई ये मेरी जन्नत है, मेरे अल्लाह ने कहा है कि इनका मकाम मुझसे ज्यादा है। और जिन रिश्तों के जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया आप उनको अल्लाह का हुक्म समझ के जोड़ोगे। आज रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, रिश्तेदारों को दोस्तों जैसा समझना शुरू कर दिया है। दोस्तों से दोस्ती क्यों होती है, इसलिए कि वो आपके काम आते हैं और आप उनके काम, वो आपसे गपशप करके आपका दिल बहलाते हैं और आप उनसे गपशप करके उनका दिल बहला। इस बेस पर रिश्ता कायम हुआ था ना। अगर वो आपके काम ना आए तो आप उसके काम आना छोड़ देते हो, अगर वो आपको टाइम नहीं दे, गपशप के लिए टाइम नहीं दे, तो आप भी उसको टाइम देना छोड़ देते हैं। ठीक है भाई, जो रिश्ता कायम हुआ था उसकी बेस ही यही थी, तो जब बेस खत्म तो रिश्ता भी खत्म, बिल्कुल ठीक है, कोई इश्काल की बात नहीं। आपका अपनी कंपनी में अपने बॉस से ताल्लुक हुआ, इस ताल्लुक की बेस क्या थी कि भाई आप इसकी खिदमत करेंगे, इसका काम करके देंगे तो ये आपको तनख्वाह देगा, ठीक है ना। और वो आपसे तमीज से बात क्यों करता है कि आप उसकी कंपनी के मुलाजिम हैं और आप उसकी कंपनी की तरक्की का जरिया बन रहे हैं। जब तक ये होगा रिश्ता रहेगा, जब ये नहीं तो रिश्ता खत्म, ठीक है, कोई इश्काल की बात नहीं। कंपनी गई, कंपनी बंद हो गई, तो कोई बॉस के साथ घर जाता है कि अब आपके घर आया करूंगा मैं, कंपनी तो रही नहीं है, अब आप एक कमरा मेरे लिए, वो कहें क्यों भाई जब कंपनी नहीं रही तो तू क्यों है। तो ये बहुत बड़ा दिमाग में हमारे वसवसा घुस गया है कि रिश्तेदारों का ताल्लुक भी जब होगा कि जब वो हमारे साथ अच्छा सलूक करें। नहीं है भाई, रिश्ता जो है ना, रिश्ते उनकी बेस ये नहीं है कि वो आपके साथ अच्छा सलूक करते हैं या गपशप करते हैं, ना 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 ना, उनकी बेस ये है कि जो ब्लड उनकी रगों में दौड़ रहा है वही आपकी रगों में दौड़ रहा है, डीएनए मिलता है। अल्लाह ने उनके जिस्म से आपके जिस्म को बनाया, या अल्लाह ने जिस बॉडी से उनको बनाया उसी बॉडी से आपको बनाया। माँ बाप से रिश्ता क्या है कि उन्होंने जना है, और भाई बहनों का रिश्ता क्या है कि जिसने आपके भाई या बहन को जना, जिस जात ने, उसी ने आपको भी जना है। एक ही पेट में, एक ही बतन में दोनों की तामीर हुई है, एक ही छाती से दोनों ने दूध पिया है। ये रिश्ता क़यामत तक खत्म, बोल लो ना यार, जुमला तो मुकम्मल, ये खत्म नहीं हो सकता। जब ये खत्म नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रिश्ते की जो बेस थी वो बेस खत्म। डीएनए चेंज हो सकता है भाई, डीएनए चेंज हो सकता है, आप जाके अपना डीएनए चेंज करवा के, अब आपके पहले अब्बा डीएनए से आ रहे थे गफ्फार भाई, अब डीएनए आपने चेंज करवा लिया तो अब सत्तार भाई आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है भाई? ऐसा इंजेक्शन लगवाया कि अब्बा ही चेंज हो गए, और ये नादरा में तो होता है, ठीक है ना, हकीकत में नहीं हो सकता। वो एक आदमी नादरा में गया ना, कह रहे यार मेरे डॉक्यूमेंट्स चेंज कर दो जरा,
यार डॉक्यूमेंट चेंज कर दो, तो वो यार ये बच्चे मेरे 6 आ गए हैं, ये ऐसा ना हो फैमिली प्लानिंग वाले, तो इनको 3 कर दो, 3 किसी और के खाते में डाल दो। तो अब वो नादरा वाला पूछ रहा है अब्बा वही रहने दूं? है भाई, अब्बा जो है अब्बा वही है या कोई और? नहीं यार अब्बा तो वही रहने दो। तो वो बचपन में एक आता था 50-50, अब नहीं देखते, वो पुरानी बात है। तो उसमें वो एक दिखाया कि ऑफिस जो शनाख्ती कार्ड का है ना, उसमें खातून आई और कहने लगी कि वो उस वक्त तो नादरा नहीं था, जो भी ऑफिस था वो नादरा से ये मुझको ताबीर करते हैं। नादरा वालों के पास आई और कहने लगी कि ये देखें आपने क्या किया है कि मैं बेवा नहीं हूं और आपने मुझे शनाख्ती कार्ड में बेवा लिख दिया है, जो मेरे डॉक्यूमेंट्स है उसमें क्या लिख दिया, बेवा। तो प्लीज इसको आप करेक्ट कर लें, इसकी करेक्शन करें, ये मैं बेवा नहीं हूं। तो उसने कहा क्या दलील है मैं तुम बेवा नहीं? उसने कहा देखिए मेरे शौहर खड़े हुए मेरे साथ, ये मेरे साथ मेरे शौहर खड़े हुए हैं, मैं बेवा नहीं हूं। तो उस नादरा वाले ने कहा कि तो क्या आप ये चाहती हैं कि कागजात सही हो जाएं, यानी इसमें जो लिखा हुआ है वो झूठ ना रहे, वो सही हो जाए, करेक्शन? हाँ। तो देखें मोहतरमा, मसला ये है कि अब जब कागजात में हम तब्दीली करेंगे ना तो वो बड़ा टाइम लगेगा। आसान तरीका ये, बंदूक उठाई और उसके शौहर को उठा करके गोली मार दी, वो मर गया। उसने कहा ये क्या किया? उन्होंने कहा देखो अब सही हो गए ना, जो डॉक्यूमेंट्स थे वो क्या हो गए, सही हो गए, बेवा हो गई, अब जाए शाबाश। ये आसान है, अब वरना वो तब्दीली करना आसान थोड़ी है, सारे उस वक्त कंप्यूटर भी नहीं था। तो इस तरह भी सुना है वल्लाहु आलम कि जो है अब्बा चेंज हो जाते हैं और इस तरह भी बहुत कुछ हो जाता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि दोस्ती का रिश्ता या और जितने भी रिश्ते हैं तो उनकी जब तक बेस रहेगी तो रहेगी, जब बेस खत्म तो रिश्ता खत्म। रिश्तेदारी का जो रिश्ता है उसकी जो बेस है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तभी हदीस में आता है कि रिश्तेदारों में जो तुमसे टूटे उससे भी जुड़ने की कोशिश करो, उससे भी जुड़ो, उससे भी बना के रखने की कोशिश करो। कितना बड़ा हुक्म दिया अल्लाह ने। अब लोग कहते हैं कि यार ये हमारी समझ में नहीं आता यार, वो मेरा भाई तो तमीज से बात ही नहीं करता है मेरे से, और उलमा कहते हैं इधर बना के रखो यार, ये क्या है, वो तो मेरा तमीज से बात ही नहीं करता, मेरी इंसल्ट है, मैं अगर उससे और बड़ा भाई छोटे भाई के बारे में कहता है यार ये तो एहतराम करता नहीं है, मैं इससे क्यों बात करूं भाई, आदमी तमीज का नहीं है, मैं इसको क्यों मोहब्बत दूं भाई, इसमें मेरी बेइज्जती है, मैं बड़ा हूं और ये क्या है, छोटा है। तो शैतान ने यही नहीं कहा था? अल्लाह ने जब शैतान को कहा आदम को सजदा करो, शैतान ने क्या कहा था, मेरी इंसल्ट है। इंग्लिश नहीं आती थी शैतान को, इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन बातें सारी वही करता था जो आज पब्लिक इंग्लिश में कर रही है, बातें सारी वही होती थी। उसने कहा मेरी इंसल्ट है, इंसल्ट, एक्चुअली मैं ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इस किस्म का आदमी नहीं हूं। तो यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? अल्लाह कह रहे हैं भाई बड़े भाई से कि तू छोटे को मना ले किसी तरीके से, साल हो गया 2 साल हो गए, बातचीत बंद है आपस में, उसकी विरासत दे दो उसको। अक्सर बड़ा छोटे की विरासत खाता है, सारे नहीं, उमूमन खा जाते हैं। अल्लाह कह रहे हैं उसका जो कारोबार में हिस्सा बनता है वो दो ना उसको। ये क्या ईद बकरीद पे उसको पान गुटके के पैसे देके डरखा रहे हो बस, उसे बोले यार जेब खर्ची मुझसे, बड़े पता है कैसे छोटे की विरासत खाता है, वो इस तरह से खा जाएगा क्यों, कहेगा यार मैं है ना, मेरा कारोबार है ना, मैं चला रहा हूं ना, तुम्हें बताओ शादी करनी है तो पैसे दूंगा, और कोई स्कूल के तालीम के पैसे चाहिए तो मैं हूं ना यार, पैसे हिस्सा क्यों मांग रहे हो। कल एक साहब आए मेरे पास, कहने लगे कि विरासत है और कई सालों से तकसीम नहीं हुई, वालदा तकसीम नहीं करने दे रही, वालदा तकसीम नहीं करने दे रही, वालदा कह रही हैं बद्दुआएं दे रही हैं अगर तुमने तकसीम की, और कह रहे मेरे 2-3 छोटे भाई ऐसे हैं जो मुंह से कह तो नहीं रहे हैं कि विरासत चाहिए, लेकिन चाह रहे हैं, बोल नहीं रहे हो। तो घर में क्या चल रही है, काफी चपकलस चल रही है। तो मैंने कहा वो अगर मुंह से ना भी कहें तो आप उनको उनका हिस्सा दो। कह रहे वालदा बद्दुआएं देंगी, मैंने कहा देने दो, वालदा का अल्लाह ने 8वां हिस्सा रखा है इसलिए कि ताकि वालदा 8 में से ज्यादा का मुतालबा बोलो ना भाई नहीं करे। वालदैन की बहुत बड़ी अजमत है, लेकिन अनलिमिट हुकूक किसी के भी नहीं है इस्लाम में भाई, लामहदूद हुकूक किसी के भी नहीं है, हर एक के हुकूक का कोई दायरा अल्लाह ने, वालदैन के बहुत हुकूक हैं मगर उसकी भी कोई दीवार है, उसकी भी कोई हुदूद है, इससे आगे नहीं, इससे आगे अगर वो जाएंगे तो वो खुद गुनहगार होंगे। अब माएं विरासत तकसीम नहीं करने देती शौहर के मरने के बाद, कहती हाय ये हाय। मैंने कहा भाई अगर माँ को ये डर है कि कहीं बंटवारा होके मैं रुल ना जाऊं तो इसका तो इंतजाम आप सब पर लाजिम है, माँ को घर देना, माँ को इज्जत के साथ रिहाइश देना, इसका तो आपने वैसे ही इंतजाम करना है, इसका विरासत की तकसीम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बोलो आप उनको गारंटी दो, और माँ का 8वां हिस्सा अगर इतना बन रहा है कि इसमें उनके लिए घर आ सकता है तो ठीक है, नहीं आ सकता तो आप उनके साथ ताउन करो उसमें, ये तो आपकी इसका विरासत से ताल्लुक नहीं है, लेकिन जिसका हिस्सा है उसके हवाले करना पड़ेगा। अब लोग ऐसी बातें सुन के ना ऐसे अजीब से हो जाए, वो तो अच्छे आदमी थे क्योंकि बयान सुन रहे होंगे इसलिए, वरना आमतौर पे लोग क्या हो जाते हैं, ये क्या है यार, अब घर बेचें, अब पैसे दें, फ्री के पैसे जा रहे हैं भाई,
آپ 1 کروڑ रुपए बहन के इस्तेमाल कारोबार आपका चल रहा है और आपको कोई कह रहा है कि ये 1 करोड़ ये फला बहन को दे दो, 1 करोड़ फला को दे दो, क़यामत गिरेगी ना सर के ऊपर। क्या ख्याल है भाई? आप बोलोगे ये मौलवी साहब ठीक नहीं है, ये घरों में लड़ाई और फसादात पैदा करवा रहे हैं, ये इल्जामात लगते हैं हमारे ऊपर। ये घरों में अच्छे भले मोहब्बत से रह रहे थे, मां की बद्दुआओं से बचे हुए थे, इन्होंने जाके क्या कर दिया? लड़वा दिया। हाँ तो भाई फसाद हम नहीं पैदा कर रहे, फसाद वो पैदा कर रहे हैं जो किसी का हक रोक रहा है, और जो दूसरे पे जुल्म कर रहा है कता रहमी की निस्बत उसकी तरफ होगी। होता क्या है कि एक दूसरे पर जुल्म करता है, जब उसको गुस्सा आता है तुम रिश्तेदारी तोड़ रहे हो। हाँ भाई तुम रिश्तेदारी, ये ऐसा ही है जैसे कोई जेब कुतरा आपकी जेब से मोबाइल निकाले, आपने एक थप्पड़ लगा दिया, जेब कुतरा कहे कि तुम इंसानियत का एहतराम नहीं कर रहे। तुमने मौलवी साहब का बयान नहीं सुना कि मुसलमान की कितनी इज्जत है, मुसलमान से तमीज से बात करना, और मारना हो तो चेहरे पे ना मारो, गर्दन पे मारो, बल्कि मारो ही नहीं। तो आप कहेंगे कि भाई एहतराम तो जब है कि तुम मोबाइल तो ना निकालो, कम से कम मोबाइल तो निकालो। तो ये भी याद रखो, रिश्तेदारी तोड़ने की निस्बत उसकी तरफ होगी जो जुल्म कर रहा है। किसकी तरफ होगी? वो ज्यादा बड़ा गुनहगार है, और जो अपना हक मांग रहा है वो गुनहगार नहीं है। हाँ ये जरूरी है कि अगर वो रिश्तेदारी जोड़ने की खातिर अपने हक से दस्तबरदार हो जाए कि लड़ाई ना हो, तो फिर वो एक अल्लाह की तरफ। हदीस में आता है कि जो हक पर होने के बावजूद अपना हक छोड़ दे तो अल्लाह उसे जन्नत के बीच में महल देंगे। लेकिन ये सिर्फ आपके अपने ऊपर ये हुक्म लागू होता है। आप अपने भाई को या बहन को ये मशवरा, क्योंकि सारी उल्टी उल्टी चीजें जो है ना, वो लोग क्या करते हैं, बात सीधी होती है जाके उसका जो उसको अप्लाई करते हैं ना, वो उल्टे तरीके से करते। अब बहन विरासत मांगेगी तो आप कहेंगे कि हदीस में आता है कि जो जिसका हक बनता हो और वो फिर भी भाइयों की मोहब्बत हासिल करने के लिए अपना हक छोड़ दे तो जन्नत के बीच में बहन तुम्हें घर मिलेगा। अब बताओ डिफेंस का 1000 गज का बंगला चाहिए, ये जन्नत के बीच में 5000 गज का बंगला चाहिए, वो बेचारी को आजमाइश में डाल दिया। तो ये अपने लिए है, दूसरे का आपको बहरहाल हक देना है। अगर वो छोड़ भी रहा हो तो आप कहें कि भाई मुझे क्या पता, दिल है इसका राजी है। और फिर वैसे भी नीच हरकत है ना, घटिया हरकत है बहनों का माल खाना। अल्लाह ने तो खास तौर पे हुक्म दिया औरत का माल मत खाओ। आदमी खाए अपने जैसे का खाए तो मजा भी आता है ना, लड़ाई भी होगी, फाइट भी होगी। ये क्या औरतों का माल खा रहा है उठा के, कमजोर औरत है उसको बेवकूफ बना रहा है। मर्द तो माल खर्च करने वाला अल्लाह ने बनाया उसको, उसका तो होना ये चाहिए कि आप उससे कहो कि मेरा हिस्सा भी थोड़ा सा तुम ले लो, जाओ ऐश करो। चलो इतना नहीं, रमजान है, अब रोजा ज्यादा ना लगना शुरू हो जाए, इतना नहीं कर सकते तो खाएं नहीं कम से कम। तो जब अल्लाह से मोहब्बत होगी तो अल्लाह ने अगर हमें हुक्म दिया बूढ़े वालिदैन का इकराम करो, उलमा का एहतराम करो, तो ये एहतराम और मोहब्बत दिल से होगा, ऊपर ऊपर से नहीं होगा। और अगर अल्लाह से मोहब्बत नहीं है तो रिश्तेदारी के हुकूक भी अदा नहीं होंगे। रिश्तेदारों में याद रखो जो सगे बहन भाई हैं वो सबसे पहले हैं, और फिर उसके बाद अब्बा के रिश्तेदार और अम्मा के। अब्बा का भाई अब्बा की बहन, अम्मा का भाई अम्मा का अम्मा की बहन, ये बहुत करीबी रिश्ते हैं जिनके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, बहुत करीबी रिश्ते। इसलिए कह रहा हूं कि आज दूर दूर के यहाँ तो ज्यादा प्रोटोकॉल है, जो अपने करीबी हैं उनको ज्यादा प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा। तो जल्दी से बात को समेट के मैं खत्म करता हूं। तो अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए। जब मोहब्बत पैदा होगी तो नमाज पढ़ना भी आसान, रोजे रखना भी आसान, सूद से बचना भी आसान, अल्लाह के हुकूक अदा करना भी आसान, और अल्लाह की मखलूक के हुकूक अदा करना भी आसान। फिर जब हुक्म आएगा दाढ़ी रखो तो रख लेंगे, उसकी लॉजिक तलाश नहीं करेंगे। यार ये तो उस जमाने में था, एक प्रोफेसर है ना, उन्होंने ये छेड़ दिया कि दाढ़ी तो उस जमाने में था जब सब लोग रखते थे, तो इसलिए कल्चर था। तो भाई उस जमाने में तो मूछे भी सब लोग रखते थे, तो नबी ने ये क्यों कहा कि मूछे घटाओ और दाढ़ी बढ़ाओ? नबी ने ये क्यों कहा कि 10 चीजें पैगंबरों की फितरतें, नाखून काटना, बगल के बाल काटना, यानी नोचना, उसको साफ करना, मूछे घटाना, दाढ़ी बढ़ाना, तो ये पैगंबरों की फितरत जो बयान की जा रही है, तो ये क्या अरब का कल्चर बयान किया जा रहा है? देखो एक काम अगर नहीं होता तो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा लो, मगर शरीयत को तब्दील करने की कोशिश मत करो। मेरा मकसद किसी बगैर दाढ़ी वाले की तौहीन नहीं है, मैं हर एक को अपने से अफजल समझता हूं, क्योंकि सिर्फ दाढ़ी नहीं है इस्लाम में, और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें और हैं। तो वो सारी चीजों पर इंसान उतरेगा तो बख्शिश होगी, तो सिर्फ एक दाढ़ी से तो काम नहीं बनेगा ना। इसलिए मेरा मकसद हरगिज तौहीन नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि ये अल्लाह का बहुत अहम हुक्म है। तो भाई इस रमजान में हिम्मत करके अपने चेहरे को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के मुताबिक बना लें, बस क्या ख्याल हो जाए। तो नुकसान क्या होगा वो बता देता हूं, भाग जाएगी अगर मंगनी हुई भी है।
अगर हो चुकी है शादी तो लड़ेगी लड़ेगी, लड़ने तो क्या कर लेगी भाई? बोले कि आप मुल्ला मुल्ला से लग रहे हैं। बोले लग रहा हूं, अब तो हो गई ना, है भाई, अब क्या, अब जो मर्जी लगो। दाढ़ी में अल्लाह ने रोब रखा है, दहशत रखी है। और अगर एक भाग जाएगी, कोई मंगेतर है, तो दुनिया में औरतें कम हैं? जो अल्लाह की नहीं हो सकती वो आपकी भी। देखो, शौहर के हुकूक अदा करना उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक औरत के दिल में अल्लाह का खौफ ना हो। खुदा की कसम उठा के बोल रहा हूं, औरत के हुकूक, शौहर के हुकूक औरत अदा कर ही नहीं सकती जब तक उसके दिल में अल्लाह का खौफ। क्योंकि अल्लाह का शौहर के हुकूक अदा करने का किसने हुक्म दिया है? अल्लाह ने। अल्लाह ने औरत को कहा है कि जब तक तेरा शौहर राजी नहीं है, तू जन्नत में नहीं जा सकती। तो जो अल्लाह की रजा की फिक्र करेगी वो करेगी ना, जो अल्लाह की रजा की फिक्र नहीं करेगी वो आपको खून चूस लेगी पूरा आपका। जब तक आप खिलाओगे उसको, आपकी बल्ले बल्ले वाह वाह। जिस दिन आप बेरोजगार हो गए, बोरिया बिस्तर गोल करके बाप के घर जाके बैठे। मैं देखता हूं लोगों को रोता हुआ, 6-6 बच्चे हो गए, बीवी छोड़ के भाग गई है क्योंकि बेरोजगार हो गए। तो वो बेस किस पर थी उसकी? पैसों पर थी। तो जब तक पैसे मिलेंगे तो ठीक रहेगी, जब पैसे नहीं मिलेंगे तो। और अगर बेस इस पर हो कि अल्लाह का हुक्म है तो पैसे मिलेंगे तो भी खुश रहेगी, पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या करेगी? सबर। इसी तरह मर्द का भी मामला ऐसा ही है। अल्लाह का खौफ होगा तो घर वालों के हुकूक अदा करेगा, खौफ नहीं होगा तो हुकूक अदा नहीं करेगा। अगर जितने कर रहा है तो सालों के डर से कर रहा है, वो ससुराल के डर से कर रहा है, वो उसको पता है छोड़ दिया तो साले नहीं छोड़ेंगे। इसी वजह से कहता हूं कि जो लोग दीनदार नहीं हैं वो अपनी बेटियां अगर कहीं देना भी चाहते हैं तो फिर वो ऐसे नहीं, हाँ, वो अगर अपनी बेटियां देना भी चाहते हैं तो अपने से कमतर में दें, ताकि जिसको धमका सकें वो, सही है ना, धमका सकें। एक साहब ने शादी की, वो लड़की के 90 से ताल्लुकात थे। यहां मेरे पास पता नहीं क्या क्या तबका आता है, क्या क्या हर तरह के लोग आते हैं। लोग कहते हैं ना आपके मेरी नॉलेज कहां से आती है? नॉलेज मेरे पास खुद बखुद चल के आती है। तो वो साहब बैठे हुए, उसने अपनी बीवी के मजालिम बयान करना शुरू किया, या ये करती है मेरे साथ, ये करती है और यूं। तो मैंने कहा भाई तलाक दे दो, इतना तो ये तो नाकाबिल बर्दाश्त है। कह रहे वो उसके भाई 90 में उठते बैठते हैं। कहां उठते बैठते हैं? मैंने कहा बस। फिर मुझे अपने हजरत का एक मकूला याद आया, ज़रबुल हबीबी ज़बीब, महबूब की मार किशमिश की तरह मीठी होती है। मैंने कहा मार खाओ और किशमिश के मजे लो, ठीक है ना, मार भी खाओ और किशमिश के मजे लो। तो मोहब्बत पैदा कर लो, इतनी मोहब्बत के मार में भी मजा आना शुरू हो जाए। तो खुलासा क्या निकला भाई? देखो, अल्लाह